Now friend, we will learn here about soil. We know that soil is the basic resource for agriculture. Besides agriculture, soil is also very important. So friend, soil is considered as a basic resource for agricultural activity. And besides agriculture, soil is most important for human being. Soil is a thin layer formed of the organic and inorganic matter on the surface of the earth. Soil is related to the surface of the earth in the same way as the apple with its skin. So friend, due to the process organic and inorganic matter, soil is formed in thin layer on the surface of the earth. यानी कि जो सॉइल है तो वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोसेस के कारण पृथ्वी के सरफेस के ऊपर वो बनती है। और सॉइल का जो रिलेशन है अर्थ के साथ तो वो एक एप्पल की तरह है, जैसे कि एप्पल की जो स्किन होती है तो इस तरह से सॉइल का रिलेशन हमारे अर्थ के साथ है। द थिन लेयर ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। सो फ्रेंड, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सॉइल. The thin layer on the crust of the earth is called soil. Now we will see here the formation of the soil. Soil is the result of denudation of rocks. The rock surface is eroded due to the factors like temperature, rain, snow, air, vegetation and insects, and it turns into powdery form. So friend, due to the denudation of rocks is the soil form, and when the rock surface is eroded due to the temperature, rain, snow, air, vegetation and insects, so these rocks convert into the powdery form and it's considered as a soil. Thus it forms the land layer, और इस तरह से वो एक लैंड यानी कि ज़मीन का जो लेयर है वो फॉर्म होता है. In this layer, there are gravels, smaller stones, pebbles, soil particles, etc., which are known as a regolith. यानी कि ये जो लैंड लेयर है तो उसमें ग्रेवल्स होते हैं, स्मॉल स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, कुछ सॉइल पार्टिकल्स भी होते हैं कि जिसको रेगोलिथ नाम से जाना जाता है. इट कंटेन्स ओनली मिनरल कंटेंट्स, यानी कि उसमें जो मिनरल्स होते हैं तो वो उसमें शामिल होते हैं. देन द बायोटिक मैटर, एयर एंड वाटर आर मिक्स विथ इट, और उसके बाद उस मिनरल में जो बायोटिक मैटर है, उसमें एयर है, वाटर है, तो ये सब उसमें मर्ज हो जाते हैं, यानी कि मिक्स हो जाते हैं. फाइनली सॉइल इज फॉर्म आउट ऑफ दिस मिक्सचर, यानी कि ये जो मिक्सर बना है तो ये मिक्सर से जो सॉइल है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है. The process of soil formation is a long-term process. So, soil formation process is a long-term process. यानी कि soil formation होने के लिए बहुत से सालों लग जाते हैं. ये short time process नहीं है मगर एक long time process है. Soils in India. Soils in India are classified into 6 types. इंडिया में जो soil से मिलती है तो उसको 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा. फर्स्ट नंबर एल्यूवियल सॉइल, सेकंड नंबर ब्लैक सॉइल और रेगुलर सॉइल, थर्ड नंबर रेड सॉइल, फोर्थ नंबर लेटराइट सॉइल, फिफ्थ नंबर माउंटेनियस सॉइल एंड सिक्स नंबर डेजर्ट सॉइल. सो फ्रेंड, वी हैव डिस्कस हियर अबाउट सॉइल फॉर्मेशन and we have also seen here the names or types of the soil. Now friends, you can see here one map of our country. In this map you can see there are different types of soil, and these soils are indicated by different colors. So purple color is described here forest and mountainous soil. Then light yellow color is described here alluvial soil. Light green color is described here desert soil or arid soil. So you can see here this map. If you talk about alluvial soil, you can see maximum alluvial soil is in North India. If you talk about
arid or desert soil. So maximum arid or desert soil is located in the Rajasthan and some parts of the Gujarat. So you can easily see here different types of soil there with their particular areas. You can also see their black soil which is found maximum in the central India, and laterite soil is found in isolated parts of our country as like in a western part, and we can also found in some areas of central India. So friend, observe this map carefully because you may ask one question from this map to filling the map in your examination. Now friend, we will discuss about soil in detail. So first one is here given, alluvial soil. Alluvial soil can be divided into two types, khadar and bangar. The soil formed due to the fresh alluvial deposit is known as khadar soil. So friend, alluvial soil can be divided into two types, and these two types are first is khadar and second one is bangar. And this soil is formed due to the deposition of fresh alluvial, and this known as khadar soil. As this soil is formed due to the river floods, it is found mostly nearby the rivers. यानी कि ये जो सॉइल है तो रिवर फ्लड्स के कारण फॉर्म होती है और इसलिए ज़्यादातर वो रिवर्स के आसपास ऐसी एलिवल सॉइल मिलती है. जनरली सच सॉइल इज सैंडी soil containing old alluvium in the upper valley region of a river is called bangar soil. यानी कि एलिवल सॉइल जो है और ख़ास करके उसमें जो खडर सॉइल है तो वो एक सैंडी टाइप की होती है, यानी कि उसमें जो रेत है तो रेत का प्रमाण ज़्यादा होता है. और सॉइल कंटेनिंग ओल्ड एल्यूवियम यानी कि जो सॉइल में ओल्ड एल्यूवियम है अपर वैली में, तो ऐसे रीजन को बांगर सॉइल कहते हैं और वो खास करके जो रिवर रीजन है तो वहाँ पे वो मिलती है. इट इज़ स्टिकी एंड हैज़ डार्क कलर, यानी कि वो एक स्टिकी और कलर में डार्क होती है. एल्यूवियल सॉइल इज सीन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. देयर फर्टिलिटी इज ऑल्सो डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. यानी कि हमारे देश में बहुत से जगह पे ऐसी एल्यूवियल सॉइल जो है तो वो मिलती है और उनकी जो फर्टिलिटी है तो वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होती है, यानी कि उनकी जो फर्टिलिटी रेट है तो वो अलग अलग होती है, वो जगह के ऊपर वो डिपेंड करती है. जनरली सच सॉइल इज वेरी फर्टाइल. इट इज़ फाउंड इन पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एट्सेट्रा. यानी कि ये सभी जो सॉइल्स है तो वो सॉइल्स में से जो एल्यूवियल सॉइल है तो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी वाली सॉइल होती है और वो एल्यूवियल सॉइल जो है तो वो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में वो मिलती है. सेकंड नंबर, ब्लैक सॉइल. दिस सॉइल इज फाउंड मोस्टली इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना and Tamil Nadu. Black soil is the gift of Peninsular Plateau. So friend, black soil is considered as a gift of Peninsular Plateau, यानी कि Peninsular Plateau के लिए एक गिफ्ट माना जाता है. This soil is very sticky and fertile, यानी कि alluvial soil की तरह ही ये black soil भी बहुत ही sticky होती है और fertility rate भी उसका ज़्यादा होता है. It can retain humidity for a prolonged time, यानी कि उनकी जो उनमें जो ह्यूमिडिटी को रिटेन करने की जो कैपेबिलिटी है तो वो लंबे समय तक रहती है. इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द इग्नियस रॉक्स एंड इज वेरी यूजफुल फॉर कॉटन कल्टीवेशन. यानी कि ब्लैक सॉइल जो है तो वो इग्नियस रॉक्स में से वो बनते हैं और वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए यानी कि कॉटन क्रॉप के लिए वो बहुत ही यूजफुल है. दैट इज़ वाई इट हैज़ बिकम फेमस एज ब्लैक कॉटन सॉइल. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, यानी कि इसी कारण एक ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी उसको जाना जाता है और इसका दूसरा भी एक नाम है तो वो रेगुर सॉइल है.
Now friend, we will see here third number soil, red soil. Such soil is found in regions of igneous and metamorphic rocks. यानी कि रेड सॉइल जो है तो वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जहाँ पे है तो उसके आसपास में ये रेड सॉइल मिलती है. इट्स रेड कलर इज ड्यू टू इट्स फेरस एंड अदर ह्यूमस कंटेंट्स. यानी कि उनका जो रेड कलर है तो वो फेरस और मीन्स के फेरस ऑक्साइड और ह्यूमस कंटेंट्स के कारण उनका रेड कलर होता है. द सॉइल इज porous and fertile. Such soil is seen in Goa, Tamil Nadu, Karnataka, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड. तो ऐसी जो रेड सॉइल है तो फर्टाइल भी होती है और पोरस भी होती है, यानी कि उसमें छोटे छोटे हॉल भी होते हैं. और ख़ास करके ये रेड सॉइल जो है तो हमें गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में देखने को मिलती है. Now friend, we will see here fourth number, laterite soil. Laterite soil develops as a result of excessive erosion by rain. Due to heavy rain, the humus contents from the topsoil descend into the lower strata, which is called leaching. So friend, laterite soil is a result of excessive erosion which happened by excessive rain. Due to heavy rain, the human contents from the topsoil descend into the lower strata, which is called leaching. यानी कि हैवी रेन के कारण जो ह्यूमन कंटेंट्स जो सॉइल के टॉप लेवल पे ऊपर होता है तो वो धीरे धीरे करके लोअर स्ट्रेटा में चला जाता है, तो उसको लीचिंग कहते हैं. एज द सॉइल कंटेंट्स लेस ह्यूमस, इट इज़ लेस फर्टाइल. यानी कि उसमें ह्यूमस को कंटेन करने की, रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो कम है और इसलिए वो फर्टिलिटी की रेट भी कम रखता है. यानी कि फर्टिलिटी में वो बहुत ही कम यूज़फुल है. द रेड सैंडस्टोन्स कंटेन आयरन एंड एल्यूमिनियम. यानी कि जो रेड सैंडस्टोन्स है तो उसमें आयरन और एल्यूमिनियम होते हैं. द इरोजन ऑफ दिस रॉक्स रिजल्ट्स इनटू द इट्स रेड कलर. यानी कि ऐसे रॉक्स को जब इरोज होता है तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है. Such soil is found in a mountainous region of Deccan, Karnataka, Kerala, Odisha and some parts of Northeast. यानी कि ऐसी जो सॉइल है लेटराइट सॉइल तो वो माउंटेनियस रीजन में डेक्कन पार्ट में मिलती है और कर्नाटका, केरला, उड़ीसा और कुछ नॉर्थ ईस्ट के पार्ट्स में भी ये लेटराइट सॉइल मिलती है. फिफ्थ नंबर, माउंटेनियस सॉइल. Humus content is more due to the forests, although it differs from place to place. यानी कि फॉरेस्ट जो है तो फॉरेस्ट के कारण जो ह्यूमन कंटेंट है तो ह्यूमन कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है और प्लेस टू प्लेस यानी कि हर एक जगह पे वो डिफरेंट होती है. सच सॉइल ऑन शिवालिक रेंज इज लेस फर्टाइल एंड लेस डेवलप्ड. यानी कि माउंटेन जो हिमालयन माउंटेन है तो उसमें जो शिवालिक रेंज है तो उसमें ऐसी जो सॉइल है तो वो मिलती है, मगर उसकी जो फर्टिलिटी है तो वो कम होती है और वो डेवलप भी बहुत ही कम होती है. द सॉइल इज सैंडी एंड पोरस एंड डज नॉट कंटेन ह्यूमस. यानी कि ऐसी जो सॉइल है तो वो सॉइल सैंडी होती है और कुछ उसमें हॉल्स भी होते हैं यानी कि पोरस भी होते हैं और जो ह्यूमस जो कंटेंट करती है तो ह्यूमस भी कंटेंट ठीक से नहीं कर पाती है. Such soil is found in the mountainous region of the country such as Meghalaya, Arunachal Pradesh, Eastern Hill Ranges, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu Kashmir and Ladakh means Union Territories. तो ये जो माउंटेनियस सॉइल है तो ये हमें इस जगह पे मिलती है जो आपको यहाँ पे नेम मेंशन किए गए हैं और वो आप देख भी सकते होंगे. फ्रेंड, यहाँ पे आपको लद्दाख के पीछे यूनियन टेरिटरीज लिखा हुआ ब्रैकेट में दिखाई देता है तो वो इसलिए क्योंकि लद्दाख जो है तो अभी एक यूनियन टेरिटरी है. 6 नंबर, डेजर्ट सॉइल और एरिड सॉइल. सच सॉइल इज फाउंड इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा. यानी कि ये जो सॉइल है तो वो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में मिलती है. यानी कि जो शुष्क प्रदेश है, जो ड्राई एरियाज है तो वहाँ पे
ये डेजर्ट सॉइल मिलती है और ख़ास करके कौन कौन से स्टेट में ये मिलती है। तो यहाँ पे स्टेट का नेम आपको मेंशन किया गया है, आप देख भी सकते होंगे कि जो गुजरात है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में डेजर्ट सॉइल हमें मिलती है। The soil here is more alkaline and has less humus contents। यानी कि ऐसी सॉइल में जो अल्कलाइन जो है तो वो ज़्यादा होता है, जबकि जो ह्यूमस कंटेंट है वो बहुत ही कम होता है। एग्रीकल्चर हैज़ बीन मेड पॉसिबल इन सच सॉइल ओनली थ्रू इरिगेशन। यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी अगर हमें करनी है तो वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी ज़रूरी है, तभी हम वहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है तो वो कर सकते हैं। बिकॉज वहाँ पे पानी जो है, वाटर जो है तो वो वहाँ पे स्कैरसिटी होती है, उनकी वाटर की कमी होती है, इसलिए वहाँ पे इरिगेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। Thus, a large diversity in soils of the nation is seen due to diversity in climate and relief features। और इस तरह से हमारी कंट्री की जो सॉइल है तो वो सॉइल में हम बहुत ही बड़ा एक डाइवर्सिफिकेशन देख सकते हैं, यानी कि डिफरेंस हम देख सकते हैं। और ये डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिफिकेशन जो है तो वो क्लाइमेट और रिलीफ फीचर्स के कारण होता है। So friend, we have finished here our lesson. If you have any doubt or confusion, so you may send your message, you may send your problem or query to our school number. So thank you so much.